بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ صاحب جو ہمارا وننگ کینڈیڈیٹ ہے اسلام آباد کی نیشنل اسمبلی سیٹ سے، سینٹ کی نیشنل اسمبلی سے، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنا نیند ہمیں ملے ہیں اس سینٹ الیکشن کی کیمپین کے دوران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور معزز جو ہمارے لیڈرشپ ہے یہاں موجود ہے، اور ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، اور سب سے پہلے پی ڈی ایم قیادت کو اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اختر مینگا صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو، اور لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو، اور لیڈر آف دی پنجاب حمزہ شہباز کو، اور اے این پی کی لیڈرشپ کو، اور تمام میں ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ جو کامیابی ہوئی ہے یہ جمہوریت کی ہوئی ہے، جمہوریت کو فتح ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے پہلے تمام جو جتنے بھی انتخابات تھے ضمنی انتخابات وہ جیتے، اور پھر اس کے بعد سینٹ کے الیکشنز میں بھی ہم نے حصہ لیا، اور سب سے امپورٹنٹ جو سیٹ تھی وہ اسلام آباد کی تھی، اور سب کی نگاہیں یہ اسلام آباد کی سیٹ پر تھی، اور اس پر بھی پی ڈی ایم کو بہت کامیابی ملی۔ تو میں اس لیے دوبارہ ان کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی میری میاں نواز شریف صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے فون کیا تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ جیسے چیئرمین صاحب نے کہا، ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو صدر ہیں پی ڈی ایم کے، ان کے پاس بھی جائیں گے، اور لیڈر آف دا اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب کے پاس بھی ہم جائیں گے، کیونکہ ان کو واپس جانا ہوگا، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں اس سے پہلے ہم سے مل لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ عدم اعتماد ہوگا، اب کیا پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس کے لیے جاری ہے یا نہیں؟ دیکھو، جو بھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اسٹریٹجی ہوگا وہ ہم کنسنسس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بنائیں گے، لیکن جو آج کا سینٹ الیکشن ہے، جو نیشنل اسمبلی میں سارے پاکستان کے جو نمائندے ہیں، یہ الیکشن صرف ایک سیٹ کا الیکشن اس لیے نہیں ہے کہ پورا پاکستان ووٹ کر رہا ہے، ہر علاقہ ووٹ کر رہا ہے، اور اس میں وزیر اعظم صاحب ہار چکا ہے، تو اخلاقی بات یہ کہتا ہے، مورل بات یہ کہتا ہے کہ اس کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس قسم کا قدم نہ پہلے اٹھایا ہے، نہ شاید آج اٹھائے گا۔ جو دوسری بات ہے کہ جو عمران خان کا ناکام معاشی پالیسی رہا ہے، جو پی ٹی آئی ایم ایف کی اس کا پہلا بجٹ سے لے کے آج تک چل رہا ہے، وہ بھی رد کیا گیا ہے نیشنل اسمبلی سے۔ تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے پہلے ہی اعلان کر لیا تھا کہ سینٹ الیکشنز کے بعد مارچز بھی ہوں گے اور عدم اعتماد بھی ہوں گے، لیکن ہم اپنا ٹائمنگ خود چوز کریں گے کہ ہم کب عدم اعتماد کا ہتھیار استعمال کرنا چاہیں گے اور کہاں استعمال کریں گے۔ ایک کام کریں، جہاں آپ کو یہ کہیں جی میں کہنا چاہوں گا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، اور آپ اب پاکستان تحریک انصاف جس طرح گیلانی صاحب کی نومینیشن کے بعد پورے ملک بھر میں شیک ہوئی ہے، اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا تو مستقبل روشن ہے اور جمہوریت کا مستقبل روشن ہے۔ بلاول صاحب ایک تو مبارک ہو کہ عمران خان صاحب نے بھی کل اپنا ووٹ مسترد کرنا سیکھ لیا، لیکن یہ بتائیے کہ اگلا مرحلہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے بعد
आर्श का होगा या अदम इत्तेफाक का हो सकता है? दोनों में से पहले कौन सा ऑप्शन? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तमाम फैसले कंसेंसस के साथ लेंगे। मैं आज खुद कुछ नहीं ऐलान करूँगा, इंशाल्लाह ताला हम सब मिल के आपके सामने हमारा प्रोग्राम रखेंगे। गिलानी साहब ये फरमाएं, बिलावल साहब से भी आपसे भी सवाल है कि पहले आपने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है सेनेट इंतखाबात में, 2 दिन से 3 दिन से कुछ चेंजिंग जो तब्दीलियाँ नज़र आ रही, वीडियो ऑडियो लीक कराई जा रही थी, तो कोई गड़बड़ होने की करने की कोशिश हुई थी आपको हराने की? कोई ये 2 दिन में कोई तब्दीली? आई थिंक जो सबसे ज़रूरी बात यही है कि जीत तो हम चुके हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जीत चुके हैं, पाकिस्तान का नेशनल असम्बली के मेंबरान के वोट से जीत चुके हैं। ये पूरा पाकिस्तान का कामयाबी है। चेयरमैन साहब, मेरा एक सवाल है, अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान असम्बली तहलील करने की तरफ चले जाते हैं तो हिम्मत है तो करो। बिलावल साहब ये बताएं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 2 दफा काउंट हुआ, फिर गिलानी साहब की जीत का ऐलान, अब तक 3 दफा काउंट हो गया। अभी भी पीटीआई ये कह रही है कि हम अदालत में जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे, और ये जो वीडियोस हैं इनके ऊपर ये कहते हैं कि खान साहब जो है वो बड़ा स्पोर्ट्समैन था, तो स्पोर्ट्स में आपका ऑनरेबल डिफीट होता है और डिसऑनरेबल डिफीट होता है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को ऑनरेबली हार मानना चाहिए और इस किस्म का नखरे इस वक्त नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब ये बताएं कि आपका ये स्टांस रहा है पहले दिन से मीडियम के अंदर, जो हमारी खबरें आती रही हैं कि आप इस स्टांस पे कायम थे कि चूँकि पहले जाना चाहिए अदम एतमाद की तरफ, और आज पूरे एतमाद थे। आज उसी का नतीजा हुआ कि आज रिजल्ट जो है आपकी उसी मौक़िफ़ की तायद है। ये पीडीएम के अंदर जो आपका नुक्ता नज़र था कि हमें किस तरफ पहले जाना चाहिए, लॉन्ग मार्च से पहले किस तरफ जाना चाहिए, अदम एतमाद की जाने, तो अब आपके नुक्ते की फतह हुई है, तो आप पीडीएम की क़यादत को काज करने में कामयाब हो जाएंगे, लॉन्ग मार्च आगे हो जाएगा। देखिए, जीत हार तो अल्लाह ताला की हाथ में होता है, मगर अगर आप लड़ते नहीं हो, आप मैदान में होंगे नहीं, तो जीतने तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। हम जानते थे कि लड़ाई मुश्किल था, मगर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के क़यादत को, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे साथी हैं, कि हमने साथ मिल के जब ये लड़ाई, चाहे वो बाई इलेक्शंस का हो, चाहे वो सेनेट लड़े हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फतह भी हासिल कर चुके हैं। अब जो आगे का लाए अमल है वो तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मिल के तय करेंगे। बताइएगा, सेनेट की बड़ी निशिस्त काबिल कमेटी है, तो इसका असल जो है मुबारकबाद का हकदार कौन है, पॉलिटिकल इंजीनियर या रिवर्स इंजीनियर? देखें, आज मैंने पहले ही कहा, मैं बहुत कम बोलता हूँ, तो मैंने पहले कहा कि डेमोक्रेसी की फतह हुई, डेमोक्रेटिक फोर्सेस की फतह हुई, पीडीएम की फतह हुई, पार्लियामेंट की फतह हुई, और मैं पार्लियामेंटेरियंस को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके आने से पहले, इलेक्शन तो आज हुआ है, उनके आने से पहले जो पार्लियामेंटेरियंस या पार्लियामेंट का जो रोल था, जो गलती प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ जुडिशरी में भेजा इंटरप्रिटेशन के लिए या राय के लिए, वो रोल बनता नहीं था, वो रोल था पार्लियामेंट का। और हमने वो फतह हासिल की कि पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी थी, पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी थी, उसको हमने आने से पहले उसको बहाल कर दिया, और आर्टिकल 226 की इंटरप्रिटेशन थी वो भी हमने पूरी कर ली, और जो भी रोल है वो पार्लियामेंट ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। और जो प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट आवाम तक नहीं पहुंच सकती थी, या वो पार्लियामेंटेरियंस तक नहीं पहुंच सकती थी, जो वज़ीर आज़म साहब नहीं मिलते थे, तो हमने उनकी ज़ियारतें मुफ्त करवाई। बिलावल साहब ये बताइए कि जिस तरह शहर में पेशेंगोइयाँ हो रही है, क्या प्लान भी ये है कि सेलेक्टिव के ऊपर नहीं बल्कि सेलेक्टिव के ऊपर तनकीद होगी? इमरान खान हुकूमत की नाकामियत देखो, हमने पहले भी ऐसा नहीं, देखो हम जमहूरियत का बहाली चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर इदारा अपना अपना काम करे, तो जहाँ
कोई अदारा अपना काम नहीं करेगा, किसी और का काम में मुदाखलत करेगा, वहाँ तो ज़रूर तनकीद होगी। जो इमरान खान साहब का हुकूमत का पॉलिसीज़ है, जो 3 साल का कारकर्दगी है, वो हम आज से नहीं पहले दिन से आपके सामने पेश कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान के अवाम समझ चुके हैं कि जो बोझ वो इस वक्त उठा रही हैं अपने बिजली की बिल में, अपने खाने पीने की अशिया की बिल में, ये इमरान खान की नालायकी नाअहली का बोझ है। और उनको ये नहीं उठाना पड़ता अगर इस नालायक हुकूमत हम पे मुसलत नहीं किया जाता। तो हमारा जिद्दोजहद वही है, हमारा कोशिश वही है कि हमने इस कठपुतली निज़ाम को ख़त्म करना है, एक अवामी हुकूमत मुंतखब करवाना है जो अवाम का नुमाइंदगी कर सके, जो अवाम का मसाइल हल कर सके। इस वक्त हमारे मुल्क के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि हुकूमत उनको मदद करना चाहिए, हुकूमत को उनको रिलीफ देना चाहिए, लेकिन इस वक्त हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ पहुँचा रही है। बिलावल साहब, एक पहले भी वो इस्तीफ़ा की तरफ जा रही थी पीडीएम, आप उनको वापस ले आए, तो अभी जब गिलानी साहब कामयाब हुए तो वहाँ पे लॉन्ग मार्च का ऐलान हो चुका है, तो क्या आप पीडीएम को एडवाइस नहीं करेंगे कि रीथिंक करें, जहाँ तक के बजाय अदम एतमाद की तरफ? जहाँ तक इस्तीफ़े की बात है, पूरे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कंसेंसस था कि हम अपने अपनी जमातों के क़ियादत तक मेंबरान असम्बली के इस्तीफ़ा पहुँचाएँगे इस साल का शुरू होने से पहले, और हम ने वो भी किया है। हमने अब बाई इलेक्शंस भी लड़े हैं, हमने सेनेट इलेक्शंस भी लड़े हैं, और जो आगे का लाए अमल होगा वो हम मिल के तय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा कोशिश रहा है कि हम जानते हैं, ये पहले हम जानते हैं कि इलेक्शंस में धांधली भी होता है, लेकिन हम फिर भी उन इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, हम फिर भी लड़ते हैं, कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे वो 88 हो, चाहे वो 93 हो, चाहे वो 2002 हो, चाहे वो 2007 हो, हमने जब जीते भी है, हमने इलेक्शंस एतराज़ात रिकॉर्ड करते हुए धांधली के बावजूद हुकूमत बनाए हैं। हम चाहते हैं कि साफ़ और शफाफ इलेक्शंस हो, हम चाहते हैं कि सब के लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड हो, बिकॉज़ हम बिलीव करते हैं कि अगर इक्वल प्लेइंग फील्ड होंगे, अगर पाकिस्तान के अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे, तो फिर वो नुमाइंदे मुंतखब करेंगे जो उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो उनका मसाइल हल कर सकते हैं। गिलानी साहब की जीत से पहले ये सामने आया कि हुकूमत वक्त ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वीडियो के बाद गिलानी साहब को नायब करार दिया जाए। आज जीत हुई है, पीपल्स पार्टी को क्या खदशात हैं कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकती है, या जैसे एक जगह पे कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो असेंबलियाँ तहलील कर देंगे, तो क्या खदशात है कि हुकूमत किस हद तक जा सकती है, और क्या आप तैयार हैं उन तमाम चीज़ों के लिए? जहाँ तक ये तो मैंने आज सुबह शायद आपको या किसी और को असेंबली में कहा था कि हमें तो इससे ही अंदाज़ा पड़ता है ना, अगर इलेक्शन से एक रात पहले आपका मुखालिफ इलेक्शन डिले करने की कोशिश करता है, अपना मुखालिफ उम्मीदवार को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करता है, तो मतलब है उनको पहले से पता था कि हारना ही था उसको वो कवर करने की कोशिश कर रहे थे। वो प्रोपेगेंडा के तो माहिर है, लेकिन रिजल्ट्स अब सबके सामने हैं, इलेक्शन हो चुका है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जीत चुका है। आखिरी सवाल ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि 5 साल हर हुकूमत को पूरे करने चाहिए, और पीपल्स पार्टी की क़यादत का ये भी मौक़िफ़ रहा है कि अपने वज़न से हुकूमत खुद करेगी, तो फिर आप अदम एतमाद ला कर क्या मैसेज? अब जहाँ तक हमारा मौक़िफ़ तो जमहूरियत की इंटरेस्ट में होता है, हम वाकई ही समझते हैं कि जमहूरियत की तसलसल के लिए पार्लियामान को अपना टर्म पूरा करना चाहिए था, और जिस तरीके से जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, फिर ट्रांजिशन हुआ और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब मुंतखब हुए, लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 सालों से ये मुल्क चल रहा है, हमारा मीशत चल रहा है, हमारा जमहूरियत चल रहा है, इस तरीके से रियासतें नहीं चल सकती। हम चाहते हैं कि जमहूरियत
फाल हो और चले, मगर अगर कठपुतली वज़ीर आज़म है, कठपुतली स्पीकर है, कठपुतली वज़ीर आले हैं, तो ताम ना मुल्क चल सकता है, ना हमारा जमहूरियत चल सकता है। और हम अपना कोशिश जारी रखेंगे कि ये मुल्क सही सिमत पे आए, कि पाकिस्तान सही सिमत पे आ जाए, ताकि हम अपना अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। जी First of all, ये जो आज इलेक्शंस का it was no doubt very interesting. तो आपकी जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस हैं उसकी कैंपेन will it be more PDM focused or People's Party focused? And my second question, आपकी बाइडन इनॉग्रेल पे आपका इनवाइट आया था, but due to COVID, many global leaders couldn't go. So have you made a telephone call with President Biden? Wow, that's quite a lot of questions. जी two questions. लोग जहाँ तक प्रेसिडेंट बाइडन का इनॉग्रेशन था, वो तो एक वर्चुअल इनॉग्रेशन था, कोई इन पर्सन वाला इनॉग्रेशन नहीं था, और ना ही मेरा कोई फ़ोन कॉल किया है प्रेसिडेंट बाइडन को। जहाँ तक इलेक्शंस है, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हूँ, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कैंपेन चलाऊँगा, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाऊँगा। थैंक यू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि जमहूरियत की फतह हुई है, तहरीक अदम एतमाद का फैसला भी हम करेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन PDM की मुशावरत से ये फैसला होगा। उनका ये भी कहना था कि हम अपना चेयरमैन सेनेट भी आने वाले दिनों में मुंतखब करवाएंगे। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्जिया, देखते रहिए बोल न्यूज। पूरी दुनिया में फैला बोल रिपोर्टर्स का वसी जाल। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल, बोल न्यूज।